ఎక్కువ అవుతాయి त्याच्यामध्ये. Thank you, Nitin sir. Namaskar, Kiresh sir. And Just good evening, one each and every present here. Okay, good evening, each and every present here. So, as per Yoga Vidyanikeshan tradition, we start today's session, our Yoga Pushpanjali fourth session with 3 Omkar followed by prayer. So, sit straight, make your spine straight, take your shoulder back and make your spine straight. Your chin is parallel to the floor. Look straight and gently drop your eyelids. For each Omkar, you have to inhale fully. So inhale fully and deeply. Om. Om Bhurvasvah Tassaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Sahana Vavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya. Keep your eyes closed for a while and feel the vibration of Omkar and prayer on your body and mind. Now slowly and gently open your eyes. Thank you, everyone. I'll hand over to Smita. Sorry, Nitin, sir. Sir, please unmute yourself. Thank you, Sonali madam, and good evening to all. So this is our fourth lecture in the series, Pushpa 4 of Yoga Pushpanjali. So it is our constant effort to give you something new in this lecture series, some new subject, something new for you. So today's subject is also a little different subject that we have selected, and it's definitely all of you will like this subject. Generally, what happens now when we think of the word spirituality, people are mistaking it with religion. So that confusion should not be there. Religion and spirituality are totally different. We all are born spiritual. Spirituality is our inborn nature, whereas religion, gods are created by man. So religions are recently created, maybe some few thousand years ago. The religions were created by man only. So don't mistake religion and spirituality together. Spirituality, when we call this spirituality in our languages, there is
no exact word for the Atma Tattva in the English. Okay, they call it spirit, but don't mistake it. So it is because of this spirituality we are all Chetan. Anyway, I'm not going to deliver lecture on that. So today we'll have the integration of the spirituality with the modern healthcare. Anyway, one our usual system remains. And if the time permits, we'll have a question answer session, and you have to put your relative questions, means only related to the topic questions in the chat box, and we'll, if time permits, then we'll take the question answer session. So for introduction of our today's speaker, I will request Smita madam to take over. Thank you. Thank you, Nitin sir. A very humble namaskar to all those present in the session. I have got the unique opportunity of introducing a very great expert on this topic. Let us Dr. Akhilesh Shukla. He is presently working as the assistant professor in All India Institute of Ayurveda in Goa. Dr. Akhilesh has completed his BAMS from Bachelor of Ayurveda Medicine Surgery from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore. He has completed his MD from the Dr. NTR University of Health Sciences, Vijayawada. He has done his PhD from the Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar. He has completed MSc in Yoga from Annamalai University, Tamil Nadu. And he has completed his MA Sanskrit from Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh. Varied qualifications, and we expect a beautiful lecture, intense. Let us go into it. Sir, once more, humble namaskar to you. Welcome to the session. Let us start. Over to Dr. Akhilesh. ये स्लाइड आप सभी देख पा रहे हैं ठीक से? हाँ सर। यस। और Yes, sir. मेरी Yes, आवाज sir. मेरी आवाज आप Yes, सभी sir. Yes, तक sir. ठीक से Very well audible. Very Yes, well sir. audible. जी Size is also visible. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी योग साधक और साधिकाओं को मेरा प्रणाम, और आप सभी के अंदर जो परमात्मा तत्व है उसको मेरा नमन। नितिन जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ में कुछ विषय व्यक्त कर सकूं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, या हम इसको कई बार अध्यात्म है, इसको और हमारे अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से देखते हैं। तो उसी विषय पर आज ये पूरी चर्चा रहेगी। और इस पूरे डिस्कशन में हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो जैसा नितिन जी ने कहा कि हम आत्म तत्व की बात करते हैं, तो ये जो आत्म तत्व है, क्या इसके बारे में कुछ रिसर्च हुए हैं? और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, क्या यहाँ पर हमको ऐसे कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे हम ये कह सके कि हाँ, आत्म तत्व जैसी कोई एनर्जी या कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे शारीरिक या भौतिक स्वरूप से भिन्न है और उसको मानना चाहिए। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो आत्मा है वो कैसे चैतन्यता का कारण बनती है, शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है, और क्या होता है जब इस शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है। हमें ईश्वर पर या ऐसे जो भौतिक स्वरूप है इससे परे कोई एक सत्ता होती है, इस पर हमें क्यों विश्वास करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ धर्म परो भवेत्, यानी कि हर परिस्थिति में मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो स्पिरिचुअलिटी है इस पर क्या रिसर्च हुए हैं मॉडर्न मेडिसिन में, ऐसे कुछ जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उसके बारे में हम देखेंगे। और अंत में जो पूरा निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस पूरी चर्चा का, इस पर हम देखेंगे। देखिए, जो
स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, ये बहुत पुराने समय से ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने वाली संस्थाएं हैं। यानी कि आप देखेंगे कि मनुष्य की जो सभ्यता है, हमारा पूरा जो सिविलाइजेशन है एंशियंट टाइम से, तो यहाँ पर जब भी कभी कोई हमें समस्या हुई, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे कोई मानसिक समस्या हो या अन्य प्रकार की आपदा हो, कोई हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा हो, ऐसी सभी परिस्थितियों में मनुष्य किसी न किसी प्रकार से वो किसी ऐसी शक्ति पर, किसी ऐसी शक्ति या किसी ऐसे सत्ता पर विश्वास करता है जो उसकी सहायता कर सके, जो कि उसके जो भौतिक वातावरण है या ये जो पूरा भौतिक जगत है इससे परे होती है। तो ये बात, और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो ये देवालय बनाए गए, मंदिर बनाए गए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, और ये केवल भारत में ही नहीं, आप पूरे विश्व में देख सकते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मान्यताओं और अलग अलग तरह के विचारधारा से बहुत प्रकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बने जहाँ पर व्यक्ति अपनी अध्यात्म के अलावा अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वहां पर जाता था और वहां से कुछ सहायता चाहता था कि मेरी जो परेशानियां हैं वो संभवतः यहाँ से मैं उससे दूर हो सकता हूँ, या यहाँ से मुझे अपनी समस्याओं का निराकरण मिल सकता है। तो पुनः फिर से जो है ये स्पिरिचुअलिटी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में फिर से ये आया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और उनमें जो डिसीज रिस्क है, यानी कि किसी व्याधि से वो पीड़ित होंगे, ऐसी संभावना भी बहुत कम होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यहाँ भी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम कहते हैं कि स्वस्थ कौन है, तो केवल उसका फिजिकल, मेंटल या केवल व्याधि से मुक्त होना ही नहीं, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वो भी हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जैसे कि हमारी आयुर्वेद पद्धति है, सिद्ध चिकित्सा जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। भारत में यूनानी चिकित्सा भी है जो कि अरब देशों से आई और यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ, और वर्तमान में यूनानी चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केंद्र भारत देश है। साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट में सोवा रिक्पा ये चलती, ये चिकित्सा पद्धति है। तो इन सब चिकित्सा पद्धति में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके पूरे जो आधारभूत सिद्धांत हैं, वो आधारभूत इसका, इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो द वर्ड स्पिरिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्पिरिटस। तो ये लैटिन शब्द स्पिरिटस इससे बनता है, जिसका मतलब होता है ब्रीथ, स्पिरिट, सोल, या हम इसको और नाम दे सकते हैं कॉन्शियस एलिमेंट या वाइटल फोर्स, ऐसे कई नामों से हम, या लाइफ फोर्स, ऐसे कई नामों से हम इसको व्यक्त करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी देयरफॉर रेफर्स टू वंस कनेक्शन टू हिज ब्रीथ, लाइफ, स्पिरिट और सोल। तो यानी कि जब हम किसी को स्पिरिचुअल कहते हैं या स्पिरिचुअलिटी जब हम कहते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि हम वहाँ पर जो ये भौतिक स्वरूप है इससे अलग किसी विषय की बात कर रहे हैं। उसको आप, चाहे आप उसको कह दीजिए कि उसकी प्राण ऊर्जा है, या उसको आप ये कह दीजिए कि उसका आत्म तत्व है, या उसको और नाम दे दीजिए कि उसका चेतना तत्व है, ऐसे किसी भी नाम से देते हैं। लेकिन वहाँ पर हम जब स्पिरिचुअल कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि मानव, एक ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअल इन नेचर, जब हम ये बात कहते हैं यानी कि हम
इस मानव को इसके शरीर से भिन्न भी कुछ मानते हैं, इससे शरीर ही नहीं उससे अलग कुछ सत्ता है, ऐसा भी हमारा एक नजरिया बनता है। अकॉर्डिंग टू जोन्स जे, द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दैट देयर इज ए ट्रांसटेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारा सामान्य जगत के बारे में जो अवधारणा होती है, ये जीवन उससे अलग भी है, उससे आगे भी कुछ है। और जो हमारे जो ईगो है, यानी कि मैं अपने आप को अपने शरीर से रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मेरा ये शरीर यानी कि मैं, तो इससे अलग भी कुछ होता है, ऐसा जो एक भाव है। और किसी एक हायर रियलिटी, कुछ एक जो भौतिक जगत से परे सत्ता है, इसको विश्वास कर रहा, ये स्पिरिचुअलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग है। या हम उसको कहते हैं, जो इन सब बातों को मानता है उसको ही हम कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं, क्या ऐसा कुछ कोशिश की गई है जिससे हमें पता लगे कि स्पिरिट या सोल या कॉन्शियस एलिमेंट या लाइफ एनर्जी या लाइफ फोर्स, ऐसा कोई एक तत्व है या ऐसा कोई एक और विषय है हमारी जो शरीर है इससे अलग। तो ये रिसर्च किया रेमंड ए मोडी, इनकी पुस्तक भी अवेलेबल है, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो इसमें इन्होंने 3 तरह के लोगों में अपना रिसर्च किया। एक ऐसे लोग कभी कभी जो चिकित्सा में इन्वॉल्व हैं और जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पास कभी कभी ऐसी रेयर इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति आता है और वो उसके में लाइफ के कोई साइन नहीं होते, या कि ट्रीटमेंट करते वक्त अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब हम कहते हैं मृत्यु हो गई, यानी कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, लाइफ के कोई साइन उसमें नहीं होते, और फिर अचानक कुछ समय बाद वो जीवित हो जाता है। तो ये जो क्लिनिकली डेड हो जाते हैं, यानी कि चिकित्सकीय दृष्टि से जिसको हम कह दिए कि ये अब मृत शरीर है, ये मृत है, अब इसमें जीवन नहीं है, और कुछ समय बाद उसमें जीवन आ जाता है। ये कई बार हमको ऐसा देखने को मिलता है कि सडनली हार्ट बीट वगैरह पूरी स्टॉप हो गई और इसके बाद वो जब प्रयास किए और अचानक कुछ 5 मिनट 7 मिनट बाद अचानक उसको फिर से जीवन प्राप्त हो गया। तो उसने एक इस तरह के लोगों पर अपना अनुसंधान किया। दूसरे तरह के ऐसे लोग जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हुए या किसी दुर्घटना से जिनका सामना हुआ और वो अपनी मृत्यु के समीप पहुंच गए, यानी कि वो अब मर गए हैं ऐसा मान लिया गया, बिल्कुल मृत्यु के पास है, और फिर वो किसी तरह से बच गए। ऐसे लोगों का क्या अनुभव रहा। और तीसरे ऐसे प्रकार के व्यक्ति, जब वो मृत्युशैया पर थे और मृत्युशैया पर वो अपने नज़दीक के जो उनके सगे संबंधी थे उनसे वो जो भी अनुभव अपने बताए कि अब वो मृत्यु में जब जा रहे हैं या अब बस मृत्यु के निकट हैं, तो उनका क्या अनुभव है, किस तरह का आ, विषय और किस तरह के दृश्य उनके मन में आ रहे हैं, क्या विचार चल रहा है, क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने ये सब 3 प्रकार के लोगों पर अपना पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि इस शरीर से भिन्न कुछ एक वस्तु है, कोई एक ऐसा एनर्जी है जो कि इस जीवन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी भाव विचार और जो भी ये जीवन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये शरीर से भिन्न कोई एक वस्तु है, उसके द्वारा चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो जीवन है वो केवल शरीर मात्र है। और उन्होंने कहा कि ये जो तीनों प्रकार के लोगों का उन्होंने अनुसंधान किया, उसमें एक कॉमन एक बात थी कि वो सभी अपने शरीर से अलग होकर अपने शरीर को देख पा रहे थे। जैसे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हुई और अचानक उन्होंने फिर से जीवन प्राप्त किया, तो उनका अनुभव था कि मैं अपने शरीर से बाहर था और मैं देख रहा था कि डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि मेरे रिलेटिव्स रो रहे हैं, और मेरा जो आत्मा थी या मेरा जो जीव तत्व था वो शरीर के बाहर विद्यमान था। और कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे मृत्यु का समय नहीं है, और मैं फिर से अपने शरीर में प्रविष्ट हो गया। या कि जो मृत्यु के सब समीप पहुंच गए, जो
अपने सगे संबंधियों को बताया, उन्होंने बताया कि मैं जब मरने वाला हूँ तो मुझे जो मेरे पूर्वज हैं उन सबके दर्शन हुए, मैं उनको देखा और ये एक अलग जगत था जहाँ पर मैं सबसे मिल पा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा शरीर अब अलग है और मैं, यानी कि जो मेरा जीव तत्व था वो अलग है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये कॉमन जो उनके अनुसंधान में आया, तो इसी अनुसंधान पर उन्होंने ये पुस्तक भी लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। और उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइफ। तो ये उनका एक निष्कर्ष निकला। दूसरा, एक जो बहुत मेडिकल चिकित्सा जगत में हम जिसकी बहुत चर्चा करते हैं वो है इयान स्टीवेंसन का रिसर्च, जो प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन। उनकी एक पुस्तक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। उन्होंने ऐसे हजारों केसेस डॉक्यूमेंट किए रीइंकार्नेशन के, या रीबर्थ, पुनर्जन्म हम जिसको कहते हैं। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे या कोई ऐसे पुरोहित या ये नहीं थे, ये मेडिकल पर्सन थे और इन्होंने जो भी मेडिकल पैरामीटर्स हैं उस पर अपने अनुसंधान को किया। तो ये जो है चेयरमैन थे न्यूरोलॉजी और साइकेट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के, और भारत में आकर इन्होंने ये अपना रिसर्च किया, क्योंकि भारत में उन्होंने पाया कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सामान्यता से बहुत ज़्यादा हैं। वो विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में ये केसेस ज़्यादा हैं और भारत के लोग इसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। ये लोग जान पाते हैं कि कौन हमारे यहाँ जन्म लिया है या कौन फिर से हमारे परिवार में आ गया है। तो उन्होंने ऐसे जो 20 केसेस थे जहाँ पर उनको बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल गई, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रिइंकार्नेशन। आप अगर गूगल में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी, ये अवेलेबल है पुस्तक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी पाया गया है, देखिए, कि कोई जब एक छोटा बच्चा होता है 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का, जहाँ पर कुछ बच्चे अभी भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सब सीखते होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको पूरे पूरे ग्रंथ याद हो जाते हैं। तो आखिर ये संभव कैसे हो पाया कि एक छोटा बच्चा वो पूरा का पूरा ग्रंथ जान गया और पूरे का पूरा विषय उसको मालूम है, और उसको विषय इस प्रकार से मालूम है कि युवा अवस्था में या बहुत पढ़ने के बाद भी लोगों को ये ज्ञान नहीं हो पाता। और या कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा अगर उसको हम रिग्रेस करें, यानी कि उसको पास्ट लाइफ थेरेपी, पूर्व जन्म की ओर ले जाएं, और सडनली वो कुछ अलग भाषा में बात करने लगे। जैसे मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, जब उसको रिग्रेस किया गया वो चाइनीज बोलने लगे या वो तमिल भाषा में बात करने लगे, और उसी फ्लुएंसी में बात करे जैसे कि तमिल का व्यक्ति बात करता है। वो व्यक्ति इस कभी भी उस भाषा के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं, उसको मालूम नहीं है, या वो कभी चाइना गया नहीं, और फिर उसको चाइनीज कैसे मालूम है। तो ये जो केसेस देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आंसर क्या है? तो आंसर यही मिलता है, यान स्टीवेंसन इनका रिसर्च था, उन्होंने कहा कि ये हम इसके लिए और कोई आंसर नहीं दे सकते, हमको ये मानना पड़ता है कि रीबर्थ होता है, यानी कि जो आत्म तत्व है वो एक शरीर से दूसरे शरीर पर, जैसा कि हम जैसे कहते हैं कि जब एक शरीर जीर्ण हो जाता है तो जैसे वस्त्र हम त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ये आत्म तत्व एक शरीर जो जीर्ण हो चुका है उससे दूसरे शरीर में जाकर प्रविष्ट हो जाता है। तो ये पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ, ये ब्रूस गोल्डबर्ग, ये एक रिसर्चर, इन्होंने लिखी। तो एक और बात होती है कि जैसे हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ यानी कि जो पिछला था, तो फ्यूचर लाइफ यह भी पॉसिबल है। जैसे रिग्रेशन पॉसिबल है वैसे प्रोग्रेशन भी पॉसिबल है, यानी कि कल क्या होने वाला है, आने वाले 10 दिन बाद क्या होने वाला है, यह भी जाना जा सकता है। जैसे हम अपने ऋषियों को कहते हैं कि ये त्रिकालदर्शी होते थे, जो पास्ट में हो चुका है वो भी जानते हैं, जो वर्तमान में है वह भी जानते हैं, और जो भविष्य में होगा वह भी जानते हैं। तो ये तीनों का ज्ञान इनके पास है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है? अगर हम आत्म तत्व है हमारे अंदर जो कि नित्य है और ना इसके लिए जन्म है ना मृत्यु है, तो ये तत्व क्या हम भविष्य भी जान सकते हैं? तो ब्रूस गोल्डबर्ग ने यह भी किया। ऐसे भी जो रिग्रेशन होता है उसकी जगह उन्होंने प्रोग्रेशन भी किया, यानी कि एक व्यक्ति को 10 दिन बाद क्या होने वाला है ऐसा भी उन्होंने कोशिश किया।
और उन्होंने पाया कि यह भी संभव है कि आप ये जान जाएं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यानी कि अगर आज मैं किसी इंटरव्यू को देने जा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, यह बात प्रोग्रेशन करके जानी जा सकती है कि ये कल उस पद पर जाएगा, सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पाया कि ये जो प्रोग्रेशन है ये बहुत अमानवीय है, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि यदि हम जो पिछला है उसको तो किसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि चलो हमारे जीवन में ऐसा हो चुका है, ये बीत चुका है मेरे जीवन में, इस बात को तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं अब कल मेरा यहाँ पर जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा वर्तमान पूरा का पूरा प्रभावित होता है। तो उनके एक्सपीरियंस में ऐसे सब जो विषय है तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रेशन इज कम्प्लीटली इनह्यूमन, अमानवीय है, इसको नहीं करना चाहिए। रिग्रेशन कई बार चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो पुस्तक है ये अवेलेबल है, अमेजोन में भी अवेलेबल है, और इसकी पीडीएफ फ्री आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको पढ़िए। इसमें 20 जो केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है एशियन कंट्रीज के ही हैं, और इसमें ऐसे केसेस हैं जिसका उन्होंने पूरा फॉलो अप लिया। यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे पूर्व जन्म का मालूम है और ऐसे ऐसे जगह में था, तो मात्र कहने से ऐसा नहीं, वो जाके वहाँ पूरा आइडेंटिफाई करना, एक एक चीज़ों का सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना, इस तरह से करके उन्होंने ये सब किया। ये एक रिसर्च हुआ है हमारे बेंगलोर में, निमहैंस, आप नाम सुने होंगे बहुत सारे लोगों ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहैंस बेंगलोर, वहाँ पर डॉक्टर पशरिचा और सातवंत हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया और वहाँ पर भी उन्होंने पाया कि ये सत्य है कि रिइंकार्नेशन होता है, रीबर्थ तो होता है। और ये पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल है, ये भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे, जो कर्नाटक में ये रिसर्च हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने ऐसे जगह पर जहाँ भी उनको ऐसी सूचना मिलती थी, कई बार होता ये है कि जब कोई बच्चा अचानक कुछ ऐसी बातें करने लगेगा या पुराने जन्म की कुछ स्मृति उसको होगी और वो बोलता है, तो कई बार ये हमको लगता है कि इसको कुछ मानसिक व्याधि हो गई है या कोई इसके अंदर भूत प्रेत आ गया है, और हम उसको कभी कभी साइकेट्रिस्ट के पास में या जो मानस रोग विशेषज्ञ है उसके पास लेकर जाते हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों का इन्होंने पूरा अनुसंधान किया और इन्होंने पाया कि जो आत्म तत्व है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और कई बार जो हमारे पूर्व में किए गए कर्म हैं उनकी स्मृति उसमें संचित होती है। ये इंसिडेंस बहुत रेयर है, पर ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, ये होता है बहुत बार। बाई नेचर ये मास्क हो जाता है, ये पूरा इसमें आवरण हो जाता है, लेकिन ये पता, ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्यूमेंट में हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा होता है और हमारा पुनर्जन्म ये होता है। ये एक पुस्तक है जो कि बॉम्बे के एक कपल ने लिखी है, ओल्ड एज कपल, खुर्शीद भावनगिरी। तो ये भी अवेलेबल है और ये बहुत पुरानी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सभी जगह ये मिलेगी। द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो ये पुस्तक जो है एक बॉम्बे के जो वृद्ध माता पिता थे, इनका अनुभव है। तो इनके 2 बच्चे होते हैं जो एक एक्सीडेंट में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इस आकस्मिक मृत्यु के बाद में इनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन जो इन्होंने किया था वो अपने 2 बच्चों के लिए किया, और वो युवा अवस्था में पहुंचकर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और इनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि ये अब नया कुछ सोच नहीं पाते थे। लेकिन इनको धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने लगे कि इनके दोनों बेटे ये आसपास हैं, उसके घर में हैं, और इनको कभी आवाजें आती थी, कभी कुछ ऐसे घर में बदलाव दिखते थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ऐसे ही इनको जब ये सब अनुभव बहुत ज्यादा होने लगे, और जब पति पत्नी दोनों ने ये एक दूसरे से बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ पर हैं और वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने इस तरह के विषयों को देखना शुरू किया। और फिर एक जो व्यक्ति जो इस तरह के कार्यों के विषय में जानता था, उसने उनके
आत्मा को अपने शरीर में बुलाया और बुलाकर उनसे बातें की। तो इस पूरे अनुभव को उन्होंने लिखा है कि जो हम संसार देख रहे हैं अपनी आंखों से, इससे परे कुछ और भी है, एक अलग दुनिया है जिसको उन्होंने कहा स्पिरिट वर्ल्ड। और यहाँ पर ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उनके पूरे अनुभव और फिर उनके जो दोनों मृत बेटे थे, उनकी आत्मा से जो भी उनकी बातें हुई, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस इस बुक में है। अगर किसी की रुचि हो वो ये सब पढ़ सकते हैं। एक और टर्म है जीनोग्लॉसी। तो जीनोग्लॉसी इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जब रिग्रेस किया जाता है, यानी कि पास्ट लाइफ थेरेपी की जाती है, तो कई बार वो ऐसे लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है जिससे वो कभी भी परिचित नहीं रहा। और कई बार इस विधि का प्रयोग किया जाता है बहुत पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है उनकी रीडिंग के लिए। जैसे पुरानी भाषाओं में जो लिखी गई हैं, जो भाषाएं अब प्रचलन में नहीं है लेकिन उसके कोई ग्रंथ मिल जाते हैं, तो कई बार ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं कि एक व्यक्ति को उसके कई लाइफ, यानी एक नहीं दो नहीं, उसके कई जन्मों के पीछे ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा जाए या उसमें क्या लिखा है ये जाना जाए। तो ऐसे भी प्रयोग हैं और ऐसे प्रयोगों का जो है ये डॉक्यूमेंट भी किए गए हैं। तो जब एक व्यक्ति इस तरह से जब वो भाषाओं में बात करने लगे जिसको इस जन्म में उसने कभी सीखा नहीं, वो इसके बारे में कभी जानता नहीं, और वो उस भाषा में बिल्कुल ऐसे ही बात करे जैसे आज हम हिंदी, इंग्लिश या मराठी में बोल रहे हैं अपने इस जन्म में, ऐसे ही हम चाइनीज में बोलने लगे या हम कोई तमिल में बोलने लगे या और किसी पुरानी भाषा में हम ऐसे बात करने लगे, तो आप इसके लिए क्या उत्तर देंगे? तो ये हमको यहाँ पर ये मानना पड़ता है कि हमारे भौतिक शरीर से भिन्न कोई एक ऐसा तत्व है जो विद्यमान है और जिसमें सारा कुछ, सभी ज्ञान और सभी कुछ ये संचित है, और उसको जानने की या उसको ये साधना के द्वारा और अन्य विधियों से इसको जाना भी जा सकता है। तो ये थोड़े कुछ विषय हैं जो कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे ब्रियान वेस, उनकी भी पुस्तक है सेम सोल मेनी बॉडी मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स। ये भी एक साइकेट्रिस्ट हैं और जिनका सारा एक्सपीरियंस जो है उन्होंने इन पुस्तकों में लिखा। वहां पर भी यही था कि एक पेशेंट जो था, एक पेशेंट, एक लेडी पेशेंट, वो जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बता रही थी जो कि उसको थी नहीं। यानी कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया और वो कहे कि मुझे कमर का दर्द है और मैं कमर दर्द से परेशान हूँ और पिछले 10 सालों से परेशान हूँ और मुझे बिल्कुल लाभ नहीं है, तो मैं उसका एक्सरे करूंगा, एमआरआई करूंगा, उसके सारे पैरामीटर्स चेक करूंगा, और अगर मुझे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल मिल रहे हैं, सभी एनाटॉमिकल यानी कि शरीर से संरचना से संबंधित, शरीर के क्रियाओं से संबंधित सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और वहां पर कोई कारण नहीं है, ये व्यक्ति क्यों परेशान है? क्योंकि जो भी हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इस सब का जो नॉलेज है उसके हिसाब, उसके अनुसार इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसे बहुत सारे बार उन्होंने देखा उस पेशेंट को, तो उनको लगा कि ये इतनी कंप्लेंट दे रही है तो मेरा रोल है कि मैं इसको उसके परेशानियों से मुक्त करूं। तो फिर उन्होंने ये रिग्रेशन थेरेपी का प्रयोग किया और फिर वहां पर ये पता चला कि जो प्रॉब्लम आज इस पेशेंट्स को है ये इसके इस जन्म के नहीं है, ये इसके सभी पुराने जन्मों के सब कारणों से ये सफर हो रही है। उसकी सारी परेशानियां आज के समय से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा फिर उन्होंने इसको पूरे अपने अनुभव को उन्होंने पुस्तक में लिखा, ब्रियान वेस, सेम सोल मेनी बॉडी मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स। ये सब पुस्तकें अवेलेबल हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, ये सब जो है यहाँ पर तो स्पिरिचुअलिटी ये एक बहुत आधारभूत सिद्धांत में ही ये सब विषय आते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आत्मा जो है ये चैतन्यता का कारण है। तो निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय है, चैतन्य कारणम नित्योदिष्टा पश्यति ही क्रिया। आत्मा ये केवल ऑब्जर्वर होती है, पश्यति ही क्रिया, वो केवल दृष्टा, वो किसी भी कर्म में सीधे सीधे
वहां पर भाग नहीं लेती, वो केवल दर्शक के रूप में विद्यमान होती है। ये जो सब कर्म होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, तो ये सत्व और जो भूत गुण और इंद्रिय, तो सत्व यानी कि हमारा जो मन है, जो माइंड, भूत गुण यानी कि जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन्हीं का जो विकसित स्वरूप है जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, और ये जो हमारे इंद्रियां हैं, इनका जब समन्वय होता है तो वहाँ चैतन्यता होती है। और उस चैतन्यता के कारण ही हम जो सभी प्रकार की भौतिक क्रियाएं हम ये देख रहे हैं ये सब हमको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इन भौतिक क्रियाओं के पीछे जो है ये आत्मा होती है। आत्मा सीधे सीधे किसी कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये दर्शक के रूप में होती है। और जो ये क्रियाएं की जाती हैं ये मन इंद्रियों इनके द्वारा होता है। तो ये बहुत ही स्पष्टता से आयुर्वेद में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि जैसे शरीर से बाहर जो आत्मा है उसमें चैतन्यता का गुण तो है, लेकिन वो चैतन्यता व्यक्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि शरीर से भिन्न जो आत्मा है वो चैतन्य का अभाव हो गया, चैतन्यता उसमें अभी भी है, लेकिन वो चैतन्यता व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्त करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो उपकरण उसके पास नहीं है। यानी कि जो ये इंद्रिय और ये जो पंचभूत का शरीर था ये शरीर नहीं है, तो किसी प्रकार के कर्मों का व्यक्तिकरण वहां पर नहीं होगा, कोई कर्म व्यक्त नहीं हो पाएंगे। ये इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जानन नपि मृदो अभावात कुंभकृत न प्रवर्तते। यानी कि जैसे कुंभकार होता है, यानी कि जो पॉट मेकर, जो घड़ा या मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले में ये गुण है कि वो मिट्टी के बर्तन को बना सके। लेकिन यदि उसके पास जो चरखा जो चक्री होगी, जो दंड होता है और जो मिट्टी होता है, यदि ये उसके पास ना हो तो इसके अभाव में वो किसी भी मिट्टी के घड़े इनका निर्माण नहीं कर पाएगा या कुंभ को नहीं बना पाएगा। जबकि उसके अंदर सारे गुण हैं कि वो बना सकता है, लेकिन उसको ये बनाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा को चैतन्यता व्यक्त करने के लिए ये सब जो सत्व है, भूत गुण है, इंद्रिय, इनकी आवश्यकता होती है। बिना इसके आत्मा में चैतन्यता है लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पाती, यानी कि जो जिस प्रकार से हम देख पाते हैं वो नहीं दिखाई पड़ता। तो ये शरीर क्या है, तो शरीर कहा गया है कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम। शरीर जो है ये चेतना का अधिष्ठान है, जो पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग, जो ये पंचमहाभूतों का विकार, शरीर पंचभौतिक है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन सब से बना हुआ है। और ये शरीर आत्मा का एक निवास स्थान है जहाँ आत्मा आती है। तो शरीर का केवल इतना ही है। और जब इस शरीर से आत्मा अलग होती है तो शरीरे ही गते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम पंचभूतावशेषत्व पंचत्वं गतम उच्यते। तो शरीर से जब ये आत्मा भिन्न हो गई तो जो बचा वो सिर्फ पंच महाभूत बचा। और ये पंच महाभूत जो हमारा प्रकृति का पंच महाभूत है इसमें विलीन हो जाता है। तो शरीरे ही गते तस्मिन् शून्यागारम अचेतन। तो ये शरीर को हम कहते हैं कि अचेतन, अब वो नहीं रहा, अब ये शरीर मृत है। तो ये जो हम कहते हैं यानी कि अब ये शून्यागार, मतलब अब जो उसमें रहने वाला था वो चला गया, जो रहने वाला था चला गया, तो बचा क्या, ये पंच महाभूत का खाली घर बचा। तो ये पंच महाभूत का खाली घर फिर पंचत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि वो उसका शरीर पंचत्व में विलीन हो गया। तो ये सामान्य हमारे लोक भाषा में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। शास्त्र में भी यही सब बातें लिखी गई हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए। यानी वहां ये नहीं कहते कि आप किसी एक भगवान को मान लो या ऐसा, लेकिन आपको ये तो मानना चाहिए कि मेरे शरीर से भिन्न कुछ एक है, यानी कि ऐसी कोई हायर रियलिटी है, ऐसी कोई उच्चतम सत्ता है जिसके कारण मैं हूँ और जिसके कारण मेरी सारी जीवन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। यानी कि सिर्फ शरीर मत मानो अपने आप को, शरीर से भिन्न भी आपको इस बात को आपको मानना चाहिए। तो वहां पर ये कहा गया है कि जो ये नास्तिकवादी होते हैं
अब देखिए ये विषय आता है चरक संहिता में, जिसको हम कहते हैं कि ये हजारों साल पहले लिखी गई। तो उस समय भी जैसे आज लोग इस विषय पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, ये कोई आज का प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न पहले भी होते रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चारवाक दर्शन भी एक दर्शन है जिसको हमने स्थान दिया अपने षड दर्शनों में। षड दर्शन जो थे उसमें जैन, बौद्ध, इन सब के साथ, और हमने चारवाक इन सब को लिया, यानी कि जो वेद निंदक है उनको भी हमने स्थान दिया है अपने भारतीय दर्शनों में। तो जो नास्तिकवादी है उनका कहना है कि ना तो आत्मा होती है, ना तो कोई ईश्वर है, यानी कि कोई ऐसी हायर रियलिटी नहीं है, उच्चतम सत्ता नहीं है, ना ही कोई पुनर्जन्म है, और ना ही कोई कर्म और कर्म का फल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार का जो विचारधारा रखता है और इस जीवन में ऐसा वो मानकर चलता है, जीवन जीता है, तो ये कहा जाता है कि ये एक महत पाप है। यानी कि आप कर्म को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते, आप अपने आप को केवल शरीर से ज्यादा कुछ नहीं मानते, ऐसा जो विचारधारा के साथ में जीवन जीना, ये महत पाप का जीवन है। ये जो भी ग्रेटेस्ट सिन हो सकता है, जो अधिकतम, जो सबसे महान पाप है, वो इस प्रकार का है कि आप किसी को नहीं मानते हैं, आप सिर्फ अपने आप, अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि शरीर से भिन्न और भी है, या जो मैं ये भौतिक जगत देख रहा हूँ इससे परे और भी एक जगत है। और ये केवल ऐसा नहीं कि हमारा विचार ही है। जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मैस्लो, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हायरार्की ऑफ नीड। शायद आप कुछ लोगों ने इसको पढ़ा भी हो, अब्राहम मैस्लो का द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, हायरार्की ऑफ नीड। तो वहां पर उन्होंने कहा कि एक बहुत सामान्य स्तर पर, आधारभूत स्तर पर सभी मनुष्य क्या चाहते हैं, तो अपने लिए वस्त्र चाहते हैं, अपने लिए भोजन चाहते हैं, आवास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबके ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं। निम्न स्तर पर हर व्यक्ति को ये चाहिए। जब ये पूर्ण हो जाते हैं तो फिर आप जो है अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी प्रतिष्ठा हो समाज में। जब ये सब भी आपका पूर्ण हो जाता है तो अंत में जो आपके अंदर भाव आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं कौन हूँ, मेरी सत्यता क्या है, मैं इस मेरा जन्म क्यों है। ऐसे जब विषय आते हैं तो ये सबके लिए एक सामान्य हायरार्की है। यानी कि जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं अपने जीवन के, तो आपके अंदर ये प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है। ये आपका एक बहुत मूलभूत, आपके अंदर ये तृष्णा होती है, आपके अंदर ये इच्छा होती है कि आप ये जाने कि मैं कौन हूँ और मेरा सत्यता क्या है, ये जगत क्या है, जगत की सत्यता क्या है। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये एक बहुत ही जो आधारभूत सभी की इच्छा है, जो कोई बहुत विशेष नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कई विषय आयुर्वेद में बताए गए हैं कि आप कैसे आध्यात्मिकता से कनेक्टेड रहिए। तो जब हमारा दिन का प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सूर्योदय के पहले का मुहूर्त है, यानी कि अभी सूरज नहीं निकला है, सूरज निकलने के पहले का, जहाँ अभी भी रात्रि का थोड़ा भाग शेष है, वहां पर ये ब्रह्म मुहूर्त आता है। तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर सबसे पहले आप जो है मधुसूदना, यानी कि भगवान विष्णु, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे जो नियमन करने वाले हमारे पालक हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान करने से आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं और आप सभी प्रकार के जो पाप कर्म है उनसे दूर रहते हैं। यानी कि आपको किसी न किसी तरह से कुछ ऐसा सकारात्मकता अपने उठने के साथ ही अपने मन में लानी चाहिए। इसी प्रकार से जो हम अपने जीवन में सामान्य काम करते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, तो आहार ग्रहण करते वक्त भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि भाव प्रकाश है, जो कि बहुत बाद में आया गया, इसको लघुत्रयी में हम लेते हैं, तो वहाँ कहा गया है कि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर भोक्ता देवो महेश्वरा इति संचिन्त्य भुंजानम दृष्टि दोषो न बाधते। कहते हैं कि अन्न जो है ये ब्रह्म है,
जो रस है ये विष्णु है, और जो भोजन करने वाला है ये महेश्वर है। यानी कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरा शरीर भोजन कर रहा है, ऐसा ना मान के आप ये मानिए कि ये जो अन्न है ये ब्रह्म है, ये जो रस है ये विष्णु देवता है, और ये जो भोजन ग्रहण हो रहा है ये महेश है, महेश्वर है। ऐसा मानकर जब आप भोजन करते हो तो दृष्टि दोषो न भाजते, यानी कि भोजन में किसी प्रकार का अगर दृष्टि दोष है, या जब हम कहते हैं किसी को नजर लग जाती है, इस तरह का कोई है, या कोई किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज है, तो वह भी ये सब दूर हो जाती है। और आगे भी इसमें शास्त्र में कहा गया है कि अंजना अंजना गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्य हम। कहते हैं कि जो हनुमंतम, तो भगवान हनुमान जो ब्रह्मचारी हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने से किसी प्रकार का जो दोष होता है इस भोजन में ये सब दूर हो जाता है, तो उनको याद करना चाहिए भोजन के पहले। ये कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण इसलिए दिए गए हैं, प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है, यानी कि आपके जो विधियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं आपकी मान्यताओं के अनुसार। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में जो छोटे छोटे काम भी करते हैं उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो मुझे प्राप्त हो रहा है इसके पीछे बहुत सारा अन्य विषय है, या कोई ऐसी है रियलिटी, ऐसी सत्ता है जो इसके लिए काम कर रही है। ऐसा ध्यान रखते हुए जब आप काम करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि यशस्यम स्वर्गम आयुषम धन धान्य विवर्धनम देवता पितृ विप्राणाम पूजनम पूजनम गोत्रवर्धनम। तो धन धान्य इन सब का विवर्धन करने के लिए आपको देवता पितृ विप्र इन सबको और गो को, इन सबको आपको अच्छी तरह से इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन में आप अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो, यानी कि जो भी आप यश कीर्ति और सुख इत्यादि सब प्राप्त करते हो वो इसी प्रकार से प्राप्त हो सकता है यदि आप अपने देवता पितृ विप्र इन सबको आप ठीक तरह से रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक तरह से इनका सम्मान करते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि धर्म परो भवेत्, कि हर व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है वह चाहे वो सही काम करे चाहे वो गलत काम करे, वो अंततः सुख प्राप्त करना चाहता है और उस सुख की निरंतरता चाहता है जीवन में। कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जो ये कहे कि मैं दुख चाहता हूँ अपने जीवन में या मैं दुखी रहना चाहता हूँ। ये सब है, सब चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, और वो जितने कार्य करते हैं वो सब सुख की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं और सुख की निरंतरता अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन ये सुख प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप धर्म का कार्य करिए। बिना धर्म के सुख नहीं हो सकता है। क्षणिक सुख आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन अंततः वह दुख का ही कारण बनता है। शास्त्र में ये कहते हैं कि आप हमेशा धर्म परो भवेत्, और धर्म से यहाँ पर कोई एक ये नहीं है कि हिंदू और अन्य प्रकार के धर्म, इस तरह से धर्म का मतलब नहीं है। धर्म का मतलब है जो कि हमारे मानव का और जो धारण करने वाला है इस जगत को, वो जो मानव का कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वो धर्म, उसका हम अगर ध्यान में रखते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख की निरंतरता हो सकती है। ये जो अध्यात्म है, तो चिकित्सा में हम देखते हैं कि इसका क्या किस प्रकार के रिसर्च हुए हैं। तो यदि हम मॉडर्न मेडिसिन के हिस्ट्री को देखेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन के हिस्ट्री में प्रारंभ में ये सब कुछ था। प्रेयर जो है, प्रार्थना करना, ये एक महत्वपूर्ण भाग था चिकित्सा का। जो भी व्यक्ति जो किसी प्रकार के भी शारीरिक मानसिक कष्टों को प्राप्त करता था तो उसको जो भी औषध दी जाती थी, औषध इत्यादि के साथ में उसके लिए प्रार्थना करना और जो भी टेम्पल चर्च जहाँ पर जाना, ये सब एक सामान्य प्रक्रिया थी मॉडर्न मेडिसिन की। यानी कि जो हिपोक्रेटस जिसके जनक माने जाते हैं उनमें ये था। हिस्ट्री में ये सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है। जो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया मॉडर्न मेडिसिन में, ये तब आया जब
हमने पैथोजेंस को निकाला, यानी कि हमने जाना कि जो भी व्याधियां उत्पन्न हो रही है उसके पीछे किसी तरह का बैक्टीरिया है, किसी तरह का वायरस है। और अगर मैं इस बैक्टीरिया को खत्म कर दूं, एंटीबायोटिक्स दे दूं, तो मैं व्याधि को भी नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह का ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरी बात, जो सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए, जहाँ पर हम ब्लड के पैरामीटर्स और सारे बॉडी का स्कैनिंग करके हम जान सकते हैं कि कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ पर ये सब आने लगे वहाँ पर आध्यात्मिकता को पीछे रख दिया गया। उसको फिर एक तरह से उसके प्रति नकारात्मकता आ गई कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है और इसका कोई मतलब नहीं है। जो व्याधि होती है तो बैक्टीरिया, वायरस और इन सब के कारण होती है, और अगर आप एंटीबायोटिक्स और ये सब एंटीवायरल और ये सब देते हैं तो आप पूरा जीवन व्याधि से मुक्त रह सकते हैं। इस प्रकार का एक पूरा व्यू आ गया, इस प्रकार का एक दर्शन आ गया मॉडर्न साइंस में। लेकिन अब फिर से पिछले कुछ डिकेड्स से, पिछले कुछ दशकों से अब जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है ये फिर से आध्यात्मिकता एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे स्वास्थ्य का, ऐसा एक पूरा अनुसंधान यहाँ पर चल रहा है। और आप देखेंगे कि नियरली 59% जो ब्रिटिश मेडिकल स्कूल्स हैं और नियरली 90% जो यूएस मेडिकल स्कूल्स हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि वहाँ पर स्पिरिचुअल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पर होंगे, डॉक्टर उसको मेडिसिन वगैरह जो भी है, या किसी को सर्जरी है तो सर्जन अपना काम करेंगे। लेकिन इस काम करने के साथ साथ वहाँ पर एक टीम है जो कि स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर है। और स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कोर्सेस हैं, जहाँ पर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करना, पेशेंट के लिए चर्च में लेकर जाना, उसके साथ के लोगों को जो पेशेंट के केयर गिवर हैं उनको चर्च में लेकर जाना, उसके लिए विशेष प्रकार की पूजा इत्यादि करना, ये सारा का सारा जो है चिकित्सा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और ये केवल कुछ मेडिकल स्कूल्स में नहीं, यूएस में नियरली मोर देन 90%, यानी आप ये कह सकते हैं कि सभी मेडिकल स्कूल्स जो यूएस में है वहाँ पर आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल मेडिसिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और भारत में भी जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे स्टडी हुआ उसमें ये पाया गया कि नियरली 80% जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा का कार्य में लगातार लगे हुए हैं, वो ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये पेशेंट केयर के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि दवा देने के साथ साथ उनका ये अनुभव था, अपने चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि पेशेंट्स को यदि हम कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी या उसको कहें थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, भगवान सब अच्छा करेंगे, मेडिसिन लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। अगर हम उसको कुछ भी, या कि अन्य धर्मों का व्यक्ति हो, कोई मुस्लिम हो या कोई ईसाई हो, हम उसको कहें कि भैया सब ठीक करेंगे, आपके भगवान है, आपके ईसा मसीह हैं, आपके सब ठीक होगा, अगर हम ऐसा भी उसको कहते हैं तो उसको बहुत सारा उसके व्याधि से उसको बाहर आने में बहुत सहायता मिलती है। और ये भी माना गया, नियरली 93.48% उन्होंने माना कि जो भी व्यक्ति पहले से थोड़ा उसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता है वो अपने व्याधि से और अपने स्ट्रेस से बहुत आसानी से डील कर पाता है। यानी कि उसको जो भी परेशानी आती है वो ये ऐसा मानता है कि ये सब जाने के लिए आई है, थोड़े समय के लिए आई है, कहीं मेरे कुछ गड़बड़ी हुई होगी, कोई कर्म गलत होंगे, ये व्याधि आई है, ये जाने के लिए आई है, रहेगी नहीं, ऐसा मान के वो चलता है। और कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है वहां पर भी वो ये मानता है कि नहीं, मेरी मदद हो जाएगी, मेरी सहायता भगवान करेगा, ऐसा जो एक भाव आता है, तो ये बहुत कार्य करता है। आयुर्वेद शास्त्र में भी लिखा है कि आशावान व्याधि मोक्षाय शीघ्रम व्रणम अपोहति। जो व्यक्ति के अंदर ये भाव होता है, आशावान होता है कि मैं इस व्याधि से मुक्त हो जाऊंगा, यानी कि मेरी मदद करने वाले हैं, ऐसी हायर, ऐसे कोई हायर रियलिटीज हैं, ऐसी आध्यात्मिक सत्ता है जो मेरी मदद कर रही है, जो मेरी सहायता कर रही है, और मैं अपनी व्याधि से निश्चित ही मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति शीघ्र व्याधि से मुक्त हो जाता है। ऐसा ये रिसर्च में भी आया, ऐसा जो चिकित्सक है उनके अनुभव में भी आया। और आयुर्वेद में भी जब हम देखते हैं तो आध्यात्मिकता या दैव व्यापाश्रय और सत्वावजय,
ये दो, आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। 3 प्रकार की चिकित्सा में पहली चिकित्सा है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, दूसरी है युक्ति व्यापाश्रय और तीसरी है सत्वावजय। तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ये मेनली आपका स्पिरिचुअल थेरेपी है, जहाँ पर मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, प्रणिपात, गमन इत्यादि सभी विषय होते हैं। सत्वावजय चिकित्सा है जहाँ धीर, धैर्य, आत्मादि विज्ञान ये सब होता है, जो मेनली हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है या साइकिक थेरेपीज है। और युक्ति व्यापाश्रय यानी कि जहाँ पर हम औषध और आहार के द्वारा व्याधि की चिकित्सा करते हैं। और इन सब चिकित्साओं में जहाँ पर शास्त्र में ये वर्णन आया है, वहाँ कहते हैं इन सब चिकित्सा में सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होती है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, क्योंकि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा शीघ्र ही व्याधि से मुक्त कर देती है। यानी कि आपके औषध और आपके इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावकारी ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा होती है। यदि रोगी को ये लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरी सहायता कर रही है, तो वो व्याधि से एक तरह से मुक्त होता है। उसको व्याधि आती है और व्याधि शीघ्र ही चली जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर ये भाव नहीं है, तो आप उसको मेडिसिन देते रहिए, वो लंबे समय तक उससे प्रभावित होता है। तो इस दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में कई प्रकार के जो है मंत्र हैं, साथ ही साथ कुछ मंत्र सिद्ध औषधियां होती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो रत्न वगैरह हैं इन सब का प्रयोग किया जाता है। और कई बार उनको कुछ विशेष प्रकार के कर्मों के लिए भी कहा जाता है कि इस मंदिर में या इस देव स्थान पर जाके कुछ इस प्रकार के या कई प्रकार के स्तोत्र वगैरह का पाठ के लिए कहा जाता है कि आप इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करिए, इस तरह के जो स्तोत्र हैं उनका पाठ करिए। जैसे कई सारे ऐसे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे ज्वर में, ज्वर यानी कि हम सामान्य रूप से फीवर जिसको कहते हैं, बुखार आ जाना, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का बताया गया कि अगर सामान्य रूप से ज्वर बना हुआ है और जो औषधियां हैं उनसे उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। वो ज्वर के लिए जो है शीघ्रम ज्वरम व्यपोहति, तो वो ज्वर का नाश करेगा। इसी प्रकार से और भी विषय आते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जो है आपको कुछ प्रकार के मंत्रों का, कुछ प्रकार के जो स्तोत्र हैं इन सब से आपको सहायता मिलती है। तो मंत्र इत्यादि के साथ साथ जो कुछ रत्न आदि का धारण करना है, कुछ मंत्र सिद्ध औषधियों का धारण करना है, ये सब जो है चिकित्सा का एक इम्पोर्टेंट भाग है। और ये एक स्टडी हुई जिसमें गायत्री मंत्र, हमारे आज के कार्यक्रम में भी हमने प्रारंभ में गायत्री मंत्र का ध्यान किया। तो गायत्री मंत्र और जो नॉर्मल पोयम जो सिखाई जाती है, इसको लेकर स्टडी की गई स्कूल में, और इसके लिए पैरामीटर डिसाइड किया गया, DLST, डिजिट लेटर सब्स्टिट्यूशन टास्क, ये बच्चों को दिया गया। और ये पाया गया कि जो बच्चे गायत्री मंत्र इसका चैंटिंग कर रहे हैं और जो नॉर्मल चैंटिंग, नॉर्मल पोएम जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो भी अंग्रेजी भाषा की और जो भी पोएम पढ़ाई जाती है, तो ये दोनों में उनके मानसिक स्तर पर क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए ये देखा गया। तो ये पाया गया कि जो गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं उनका जो है जो स्कोर था वो बहुत अच्छा आया, कंपेयर टू जो कि केवल पोयम पढ़ते हैं या जो नॉर्मल इस तरह के इंग्लिश वगैरह के राइम्स पढ़ते हैं। तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया गया कि अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इसी प्रकार से शांति कुंज हरिद्वार में यहाँ पंचाक्षरी जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, इसके लिए देखा गया बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, यानी कि व्यक्ति का एडजस्टमेंट लेवल कैसा है, उसका अपना स्वयं का और साथ में उसके हेल्थ को लेकर और सोसाइटी में उसका एडजस्टमेंट कैसा है, किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है इस सोसाइटी में, या कि वो माल एडजस्टेड है या वो ठीक तरह से समन्वय नहीं बना पा रहा है या समन्वय अच्छा है, इसको जानने के लिए। तो यहाँ पर भी पाया गया कि अगर आप 25 मिनट्स 24 घंटे में सिर्फ 20 से 25 मिनट अगर आप देते हैं और आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका जो है एडजस्टमेंट लेवल काफ़ी इनहेंस होता है, काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। तो ऐसे रिसर्च हैं जो ये बताते हैं कि जो आप मंत्र आदि का प्रयोग करके जो आप किसी भी प्रकार के अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं,
तो इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। और जो आध्यात्मिक पर्सन है वो बहुत आसानी से किसी भी कष्टप्रद सिचुएशन में या किसी भी ऐसे दुख परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से वो इससे बाहर निकल आता है। उस वहां पर आसानी से वो विपरीत परिस्थितियों में भी वह बहुत सकारात्मक रूप से कार्य कर पाता है। तो ये सब कुछ रिसर्च में आया है। ऐसे ही ये तो सामान्य ज्योतिष इत्यादि में करते ही हैं हम। माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमंच तार्क्ष्य पुष्पम विदुरंच नीलम गोमेदकश्च वैदूर्यकंच क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणि। सो नवग्रह हैं, उनके लिए अलग अलग रत्न बताए गए हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह के लिए हम कहते हैं कि आप जो स्वर्ण है, स्वर्ण के साथ में डायमंड ले लीजिए, हीरे का प्रयोग करिए। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ग्रहों के लिए अलग अलग प्रकार की रत्न इत्यादि का है। और ये सब के ऊपर अब रिसर्च हो रहे हैं और ये पाया जा रहा है कि इन सब का साइकोलॉजिकल बेनिफिट है और इन सब के जो है पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी प्रकार से सत्वावजय चिकित्सा है। सत्वावजय जब हम कहते हैं तो दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है सत्व और अवजय। सत्व का अर्थ हुआ जो हमारा मन, और अवजय यानी कि उस पर विजय प्राप्त करना। यानी कि जब मन रजतम इन सब से प्रभावित होता है, आप सब योग साधक हैं, आप बहुत अच्छे से ये रजतम इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो जब भी मन रजतम इन गुणों से प्रभावित हो जाता है तो इन रजतम गुणों से जो हमें इन सब के ऊपर सत्व गुण की जो प्रभुत्ता लानी है, सत्व गुण का जो आधिक्यता होना है, तो उसके लिए जो चिकित्सा है वो सत्वावजय चिकित्सा है। और इसके लिए कहते हैं कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। जब भी ये मन में दोष होते हैं तो धी धैर्य आत्मादि विज्ञान ये हमारे लिए सहायता करता है। ऐसे और भी बहुत रिसर्च हैं, जैसे कि जो स्त्रियों में होता है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक का मतलब हुआ कि जो स्तन कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, जब वो पूरे शरीर में फैल गया हो, यानी कि ऑलमोस्ट अब वो असाध्य स्थिति में आ गया है, तो ऐसे स्थिति में भी जो स्त्रियां जो कि उनका एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है या जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई होती हैं, तो वहां पर ये पाया गया कि वो बहुत आसानी से जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाती हैं। और ये जो सीवियर पेनफुल, जो बहुत दर्दनाक जो एक जीवन आ जाता है, उस पर भी वो बहुत सकारात्मक रूप से रह पाती हैं। इसी प्रकार से जो फ्रैक्चर है, हिप फ्रैक्चर में ये पाया गया कि जो स्त्रियां हिप फ्रैक्चर था और जिनका बिलीव था, अब जिनका विश्वास था भगवान पर और ऐसी एक सत्ता पर जो उसकी मदद करेंगे, जो उसको व्याधि से मुक्त कर देंगे। मेडिसिन अपना काम कर रही है, मेडिसिन दिया जा रहा है। वहां पर एक प्रकार के लोग हैं जो इस पर नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ है, एक प्रकार के लोग हैं जो ऐसे विषय को मानते हैं। तो ये पाया गया कि मेडिसिन, आप दोनों को समान मेडिसिन दे रहे हो, एक जैसी मेडिसिन चल रही है, एक तरह का बाकी सब केयर चल रहा है, लेकिन जो जिसको ये विश्वास है कि मेरी मदद हो रही है या मेरी सहायता हो रही है, और जो भी भगवान है या जो भी ऐसी हायर रियलिटीज है वो हमें सहायता करेगी, मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, वहां पर ये पाया गया कि ये जो बहुत जल्दी ये आपने इवन इंक्लूडिंग जो फ्रैक्चर था इसकी भी हीलिंग फास्ट होती है और वो जल्दी अपना हेल्थ रिगेन कर सकते हैं। यानी कि जो उनका नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज था वो सब कुछ भी वो बहुत जल्दी करने लगते हैं। इसी प्रकार से और भी रिसर्च हुए जिसमें ये पाया गया कि ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, रेगुलर विजिट करते हैं टेम्पल्स में, चर्च में, या ऐसे जहाँ पर बहुत सकारात्मक उनको भाव मिलते हैं, तो उनकी आयु भी अधिक होती है। दे टेंड टू लिव लॉन्गर, तो वो लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। तो केवल व्याधि और इन सब से निराकरण ही नहीं है, आपको स्वस्थ रखना और आपको दीर्घायु प्राप्त करना, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसको इन्वॉल्व करें। और जो पेशेंट हैं जो एडवांस कैंसर स्टेज में जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स पर भी स्टडी की गई कि यदि उनको हम किसी प्रकार से, क्योंकि अब वहाँ पर मेडिसिन का
काम खत्म है। जब एडवांस स्टेज है कैंसर का तो अब उसके पास थोड़ी आयु शेष रहती है, तो वहां पर जो मुख्य विषय होता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किसी तरह से बढ़ाया जाए। तो ऐसी जगह पे मेडिसिन से ये काम नहीं हो सकता कि आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक कर देंगे। मेडिसिन से आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं। जब एक लिमिट आएगा जब मेडिसिन आपकी उपयोगी नहीं होगी, तो वहां पर ऐसा पाया गया कि अगर कोई स्पिरिचुअल बिलीव है उनका, तो वो ज्यादा खुश, ज्यादा प्रसन्नता के साथ में, और उनको जो पेन है वो भी सामान्य रूप से जो है कम होता है, और वो ठीक प्रकार से अपना ये जो जो भी उनका कष्टप्रद समय होता है वह भी वो ठीक प्रकार से व्यतीत कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जहाँ पर ये पाया जा रहा है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और आपका जो भी इंक्लूडिंग आपको कोई सर्जरी में जाना हो, इस प्रकार के जो भी हेल्थ के कॉमन इश्यूज आते हैं, इन सब में स्पिरिचुअलिटी, अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअल एलिमेंट है तो ये आपकी बहुत सहायता करता है। तो इसी प्रकार से जो स्टडी थी, पॉवेल एट ऑल 2003 में ये स्टडी हुई, तो इन्होंने भी ये किया कि जो फिजिकल हेल्थ प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज एंड दैट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इन हेल्थी पीपल and or as coping resource that buffers the impact of disease in patient। तो यानी कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, एक तो उनका हेल्थ अच्छा रहता है। यदि कोई डिसीज आ जाती है तो उसको आसानी से उसको वो कोपिंग कर सकते हैं, यानी कि उस जो परिस्थिति है उससे आसानी से बाहर निकल आते हैं। ऐसे जो है ये सभी रिसर्च आउटकम है। इसी प्रकार से जो इमोशनल वेलबींग है, इसके लिए भी पाया गया कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कई बार जो ये रिलीजन है, स्पिरिचुअल है, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, यानी कि पर्याय के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। पर यहाँ पर कुल मिला के कि यदि आप रिलीजियस भी हैं तो आप किसी न किसी ऐसी विषय पर या किसी न किसी ऐसी सत्ता पर आपका विश्वास है, आप मानते हैं उसको, जो कि आपके भौतिक स्वरूप से अलग है, तो वो एक तरह से स्पिरिचुअल के अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का एक भाग है। तो ऐसा पाया गया कि जो लोग इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है उनका इमोशनल वेलबींग ये भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली इन ओल्डर ओल्डर एज। और ये है कि आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तब अचानक आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका जो है प्रारंभ बहुत पहले से होना चाहिए, क्योंकि जो वृद्धावस्था है इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और कई बार बहुत दुखदायी परिवर्तन आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो जीवन साथी है वो पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या आपके और साथी हैं, मित्र हैं, ये सब एक बहुत अलग सा स्थिति निर्मित होने लगती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो संसार की सत्यता और भौतिकता की सत्यता पता लगने लगती है। ऐसे स्थिति में होता है कि आपके पास यदि ये आध्यात्मिकता का विषय है, तो आप बहुत आसानी से अपना जो इमोशनल एस्पेक्ट है ये भी आप मेंटेन कर पाते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे रिसर्च देखे, तो इमोशनल एस्पेक्ट्स पर भी आप बहुत अच्छे तरह से अपने आप को संतुलन में रख सकते हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल जो आयुर्वेद या जो हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं केवल यहाँ पर ही आध्यात्मिकता का एक बड़ा महत्व है, लेकिन अब ऐसा है कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है यहाँ पर भी आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आए हैं, और हमारा जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सभी प्रकार के स्टेज में हमारा इमोशनल, इन सभी विषयों को संतुलित रखने के लिए, हमारी दीर्घायु के लिए, किसी व्याधि से बाहर आने के लिए, इन सब के लिए स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बिना स्पिरिचुअलिटी के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमको स्वस्थ रहना है और एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज, अगर हमको इसकी कल्पना करनी है,
तो ये सिर्फ एक ही विषय से पॉसिबल है कि यदि लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, यदि हर कोई ये मानने लगे कि जैसा मैं हूँ, जैसे मेरे अंदर जीवन है, ऐसे ही सबके अंदर जीवन है, सभी लोग एक ही हैं, और कोई एक ऐसा परमात्मा तत्व है जो इस संसार के लिए जो इस भौतिक संसार से परे है। यदि सबके अंदर ये भाव होगा तो फिर ये जो आपस के बहुत सारे ये चलते रहते हैं, ये सभी, यानी कि आप स्वस्थ के दृष्टि से तो आप स्वस्थ रहेंगे ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन बाकी के भी जो भी भौतिकताएं और जो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं जो समाज में है, इन सबको आप, इन सब से परे आप रहकर एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ विश्व और स्वस्थ जो भारत है, इसको भी आप देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। आप आप कुछ इस पर बोलना चाहें, बोल सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस पर कुछ उसका उत्तर दे सकूं, उस पर कुछ क्लैरिटी ला सकूं। First of all, thank you very much, sir, for an excellent lecture. I understand this subject is very vast, और एक घंटे में या 1.5 घंटे में ये कवर करने वाली सब्जेक्ट नहीं है। इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट। So it's a very complicated subject and not so easy. There are two types of people. एक टाइप के पीपल है जो कंप्लेन करते हैं, they just say कि our ancient wisdom is great, ऐसे वैसे, और दूसरे है जो साइंटिफिकली बोलते हैं कि इसमें कुछ दम नहीं, ये नहीं। But both of them forget that this is an experiential science. Unless until you experience it, you can't comment on it. और हमें मालूम है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अंतिम में ये माना कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड द साइंस, कि स्पिरिचुअलिटी और समथिंग बियॉन्ड द साइंस व्हिच science cannot answer all the time. So he has also stated spirituality begins when the science ends. So that could be the very right answer to that. So there are some people having some questions. I will just go through it. एक second. Somebody has requested that if you can throw some light on chakra meditation, its implications to Adhyatmikta. So if you think it is appropriate with the subject, then sir, you can answer. ऐसा मेडिटेशन वगैरह के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन एक विषय मैं कहूँगा इसमें कि देखिए, एक जो है हमारे शरीर को, जो हम आज के एनाटॉमिकल वे में जो हम अपने शरीर को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जो हमें नर्वस सिस्टम और ये जो ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम और डिफरेंट मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और इस तरह से जो हम एक समझते हैं शरीर को, डिफरेंट ऑर्गन्स और ये सब। दूसरा एक एस्पेक्ट है शरीर को समझने का, जो कि यौगिक एस्पेक्ट है, जहाँ पर हम ये सब जो नाड़ी इत्यादि ये सब की बात करते हैं और अलग अलग जो चक्र हैं इन सब की बात करते हैं। तो ये एक दूसरी दृष्टि है जहाँ पर हम शरीर की भौतिक संरचना से अलग जो शरीर की संरचना है उसको देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 72,000 नाड़ियां होती हैं, ये षट चक्र होते हैं, 9 द्वार होते हैं, इस प्रकार का जो है। तो इस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के ये जो है चक्रा मेडिटेशन डिजाइन किया गया है, जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र है। तो ये जो षट चक्र हैं ये इसी पे आधार पर, और इसके अलग अलग जो ध्वनियां हैं, लम वम रम यम हम नम ओम, ये जो ध्वनियां हैं अलग अलग, तो ये सब बताई गई हैं। तो ये जो चक्रा मेडिटेशन है, इसका पूरा जो
जो फंडामेंटल है वो ही पूरा आध्यात्मिक है। यानी कि इसमें आध्यात्मिकता कहीं से हमको लाना नहीं है, ये आध्यात्मिकता का ही एक प्रोसेस है, जहाँ आप अपने शरीर को केवल ऐसा नहीं देखते हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम है या यहाँ पर ये ऑर्गन है या यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम है। आप उसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं और हायर रियलिटी की ओर जाते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस यही है, मुझे जैसा समझ में आता है कि आप एक अलग हायर रियलिटी के बारे में, अपने भौतिकता से अलग एक विषय के बारे में आप पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। और बाकी हर एक चक्र का और इन सब का ये किस तरह से है, ये शायद आप लोग मुझे ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। आप सब योग साधना में ज़्यादा आगे और निरंतर अभ्यास करते हैं। Sir, we understand this is because these are certain abstract entities. So this is to be, as I said, it is a experiential science. One has to experience it. But still, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आध्यात्मिकता का पंचकोश के ऊपर क्या असर होता है, ऐसा एक क्वेश्चन है। जी 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 जी। तो देखिए यहाँ पर भी है, ये जो तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली संवाद आता है, पूरा भृगुवल्ली संवाद, जहाँ पर वो जो अन्नमय, प्राणमय, फिर मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो अभी तो देखिए व्याधि को समझने का भी एक पूरा का पूरा है कि पंचकोश थ्योरी के आधार पर आप समझिए कि व्याधि कहाँ पर कैसे ओरिजिनेट हो रही है। यानी कि जो पैथोजेनेसिस है उसको अंडरस्टैंड करने का एक पूरा पंचकोशा थ्योरी है। जैसे आपके जो ये बेंगलोर में एस व्यासा सेंटर है और जो केवलता में, यहाँ पर इस पूरी विधि से आपको बताया जाता है कि कैसे व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो अन्नमय है, यहाँ की ये गड़बड़ी कहाँ पर आई है, अन्नमय में आई है कि प्राणमय में आई है कि मनोमय में आई है कि विज्ञानमय में है या आनंदमय में, कहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, किस प्रकार का है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। और फिर से मैं बोलूंगा कि ये जो पंचकोश थ्योरी है, जहाँ पर आप विज्ञान, मन, आनंद, इन सब की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इसको समझने का, हमारे शरीर को। जहाँ पर हम अन्न में जब कहते हैं तो हम ये पूरा का पूरा अपना जो फिजिकल बॉडी है, हम इसी को अब मानते हैं कि ये है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो हम प्राण को देखते हैं, हम वाइटल ब्रीथ को देखते हैं। तो इसी जैसे प्राणायाम जो है, तो प्राणायाम कैसे कनेक्ट करता है, तो क्योंकि वो फिजिकल डायमेंशन से लेके आपको स्पिरिचुअल डायमेंशन की ओर ले जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि जो शरीर को समझने का जो यौगिक दृष्टिकोण है, उसी के आधार पर ये पूरा पंचकोश थ्योरी है। और पंचकोश थ्योरी के आधार पर आप इवन जो मॉडर्न डिसीजेस हैं इसको भी आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जैसे जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोश में किसी न किसी प्रकार का इम्बैलेंस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी आप उसी तरह के प्रोसेस कर सकते हैं, और वहाँ उस कोश में बैलेंस लाने के लिए आप उस तरह की प्रोसेस या उस तरह के जो योगिक थेरेपीज वगैरह हैं वो डाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। इसमें आध्यात्मिकता के अलावा और कोई विषय नहीं है, पूरा का पूरा आध्यात्मिकता ही है पंचकोश थ्योरी और इसका जो प्रैक्टिस है। और एक प्रश्न है यहाँ पे, जी जी और वैसे प्रश्न बहुत टाइम आते हैं, क्योंकि मंत्रा का हमारे इसमें मंत्र चैंटिंग और मंत्रोच्चारण का बहुत ही असर होता है। जी बट जी इनका उच्चारण करना सबके लिए इतना भी आसान नहीं है कि सही तरह से मंत्रों का आगाज या उच्चारण कैसे किया जाए। तो ये क्वेश्चन जो अभी किसी ने पूछा है यहाँ पे चैट में, तो उन्होंने ये पूछा है कि इफ समवन एल्स चैंट्स मंत्रा फॉर यू एंड इफ यू आर लिसनिंग, तो उसका असर क्या होता है। मतलब हम अगर चैंट उतना अच्छे से नहीं कर चाहते, लेकिन कोई अच्छे से चैंटिंग कर रहा है, तो वो मंत्र का हमारे ऊपर कुछ परिणाम होता है या नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। करेक्ट, जी जी, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, रोग ग्रसित है, और हम उसको कहें कि अब आप बैठो और आप ये स्तोत्र का पाठ करो, ये उसके लिए संभव भी नहीं हो पाएगा कि अब वो स्तोत्र ले और अब स्तोत्र का पठन करना सीखे कि कैसे स्तोत्र पढ़ना है, फिर उसका ठीक प्रकार से उच्चारण करे। तो ये तो संभव भी नहीं हो पाता। कई बार जो पहले से कर रहा है वो कर पाएगा, लेकिन अचानक कोई व्याधि से ग्रसित है और हमको समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के मंत्र का आया, तो यहाँ पर श्रवण विधि से आप, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को ही करना है,
उसके लिए भी अगर आप करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम उसके अच्छे होने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना का भी असर होता है। और जैसे मैंने आपको स्टडीज बताई जहाँ पर जैसे जो यूएस बेस्ड जो स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर चैपलिन्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पुरोहित होते हैं, ऐसे चर्च में चैपलिन्स होते हैं। तो ये जो है उस पेशेंट से मिलते हैं, पेशेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, और पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझ के ऐसा नहीं कि वो पेशेंट जाएगा और जाके चर्च में प्रार्थना करेगा, ये जाकर चर्च में प्रार्थना करते हैं कि वो पेशेंट अच्छा हो जाए। और ऐसे स्टडीज हैं जो ये बताते हैं कि इसका असर होता है। यानी कि आप अगर बीमार हैं और आपके घर के 10 लोग प्रार्थना करें और ये कहें कि ये अच्छे हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं, और ऐसा भगवान से या ऐसा जो भी आप मानते हैं उनके लिए सकारात्मकता से विचार करें, तो आप ठीक होंगे, ऐसा बिल्कुल होता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप यानी कि ऐसी अवस्था में आप जानिए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए जो और कोई है, जैसे हम भी हैं, कई बार कर्म कांड नहीं जानते तो हम पुरोहित के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई हमारे ये ग्रह हैं, इन ग्रह के लिए इस प्रकार का कर्म कर दो, तो क्या उसका असर हम पर नहीं होता? तो ये सब कुछ होता है। तो इसके लिए जो विधि भी होती है, जैसे आप उसके लिए संकल्प लेते हैं, उसके लिए ध्यान करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और इसके साइंटिफिकली स्टडीड रिसर्च अवेलेबल है कि आप अगर ऐसा हो रहा है, जैसे अ, आप मंदिर में जाके किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर सकारात्मक परिणाम होते हैं। ये साइंटिफिकली स्टडीड आप कर सकते हैं और ऐसे स्टडीज हैं। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक विषय है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें हम जाके प्रार्थना कर रहे हैं उससे क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल असर होता है। यस सर। और एक किसी को एक क्वेश्चन आया है कि आपने जब भी कहा कि आत्मा दुखी, तो उन्हें वो आत्मा दुखी कैसे हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन है। और उसके बाद में आध्यात्मिक दुख के ऊपर क्या इलाज है, ऐसे दो क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो जी हाउ जी कैन आत्मा भी दुखी, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन एक किया है। जी जी। देखिए, आत्मा सुखी और दुख, जो सुख दुख ये सब का जो अनुभव होता है, ये जब जो अनुभव है ये आत्म तत्व के होने पर ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, तो ये जो हम सुख दुख इसका अनुभव कर पाते हैं, तो ये आत्म तत्व के होने पर ही ये अनुभव होता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो ऐसा है कि करने वाला आत्मा है, तो कर्ता तो आत्मा ही है, ठीक है। लेकिन कर्ता होते हुए भी वो क्रिया में भाग नहीं लेता। क्रिया में भाग लेने वाले मन, इंद्रिय, ये इत्यादि हैं। तो जो सुख और दुख ये रिलेटेड होता है, ये हमारे जो इंद्रिय और मन है इनके इनसे रिलेटेड होता है। लेकिन ये सुख दुख का अनुभव जो हो रहा है वो आत्म तत्व के कारण हो रहे हैं। यानी कि जब मृत शरीर में कोई सुख दुख नहीं होता, ना कोई ज्ञान होता है, वहां पर कोई इस प्रकार का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आत्म तत्व वहां पर नहीं है। लेकिन जीवित शरीर में आपको ये सब अनुभव मिलेंगे, ये सभी भाव आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आत्म तत्व है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि आत्मा दुखी है, तो ऐसा नहीं कि आप आत्मा को, हमने कहा निर्विकार है, यानी कि वो सुख दुख इन सबसे परे है, लेकिन उसके होने पर ये सबका अनुभव होता है। तो कई बार हम ये उस पर ही डालते हैं कि आत्मा सुखी है, आत्मा दुखी है। ये कहने का एकमात्र भेद है। ऐसा नहीं कि आत्मा दुखी हो गई, आत्मा सुखी हो गई, आत्मा में ये सब कुछ नहीं होता। आत्मा के रहने पर ये सब होता है, कर्ता वही है। तो जो आरोप लगते हैं वो भी कर्ता पर लगते हैं, ऐसा इसका अंडरस्टैंडिंग आता है। वेरी ब्यूटीफुली आंसर सर, बहुत ही अच्छा था आंसर। क्योंकि ये चेतना और अचेतन और चेतन, ये का जो डिफरेंस है वो समझ में। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक दुख के ऊपर क्या इलाज है, ऐसे उनका एक क्वेश्चन है। स्पिरिचुअलिटी। देखिए, जो आध्यात्मिक हम कहते हैं ना, तो अधि आत्मा, यानी कि जो हमारे द्वारा किया गया है, ये इसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो यानी कि ये जो भी हम अपथ्य ग्रहण करते हैं, या जो भी हम जो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ये सब फॉलो करते हैं, या कोई भी हम गलत कर्म करते हैं, ऐसे सब कर्मों के कारण ही हमको दुख होता है। तो आध्यात्मिक दुख, यदि आप इसको ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअली रिलेटेड है ऐसा,
तो इसके लिए कर्म और कर्म फल का नाश, तो इसके लिए भी आता है शास्त्र में कि न ही कर्म फलम किंचित, न ही कर्म महत किंचित फलम यस्य न भुज्यते, क्रियाग्ना कर्मजा रोगा प्रश्वम यान्ति तत्क्षयात्। यानी कि समझ लीजिए कि हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो कि अच्छे नहीं थे। अब ये कर्म जो हम किए ये आवश्यक नहीं है कि मेरे इस जन्म के कर्म भी हों। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रायन वेस, उनका जो बुक है सेम सोल मेनी बॉडी मेनी लाइफ मेनी मास्टर, उसमें एक पेशेंट आ रही है जिसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, इस लाइफ से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन सफर इस लाइफ में हो रही है। तो इस तरह का जो सफरिंग होता है, यानी कि जहां पर अननोन ओरिजिन है, उसका कुछ कारण मालूम नहीं है, सभी एनाटॉमिकल फिजिकल पैरामीटर्स यानी जो भी हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं वो परफेक्टली नॉर्मल है, कोई भी कहीं गड़बड़ी नहीं है, फिर भी पेशेंट सफर कर रहा है। तो जब पेशेंट सफर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कुछ ना कुछ उसकी सहायता करे। तो यहाँ पर जो शास्त्र कहता है कि ये जो कर्म है, कर्म का फल जब नलीफाई हो जाता है तब ये व्याधि भी शांत हो जाती है। अब कर्म का फल नलीफाई करने के फिर कई सारे उपाय हैं, और वो उपाय का वर्णन भी आता है कि अब जैसे ये जानना बहुत कठिन है कि मैंने किस प्रकार के कर्म किए और किस प्रकार की मेरे को उसका फल क्या आया। हम तो देख पा रहे हैं कि वो सफर कर रहा है। कर्म क्या किया था, कर्म इस जन्म के हैं, पूर्व जन्म के हैं, या और उसके कई जन्मों के पहले हैं, ये तो हमको पता नहीं चलता। लेकिन इसके उपाय हैं, और ये उपाय बहुत आपके जो रूटीन वर्क है इसमें ही सब कुछ रहता है। और कई बार ये जो है, जो हमारा देव व्यापाश्रय चिकित्सा हम कहते हैं, इन सब में ही आता है। जैसे आप सामान्य रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का देखिए तो उसकी फलश्रुति लास्ट में पूरी दी है, धर्मान आपनुयात धर्मम अर्थाति च अर्थम आपनुयात कामान आपनुयात कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात प्रजाम। तो जिसकी जो जो इच्छा है वो ऐसे बताते हैं कि ये सब पूर्ण करेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो आपके जो कर्म हैं उनको नलीफाई करने के लिए सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके ये जो आध्यात्मिक दुख हैं इनसे भी आप निवृत्त हो जाते हैं। आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि अब आप अच्छे कर्म करिए, और अब आप अच्छे कर्म करते हैं तो जो वो आपका पुराना कार्मिक बैलेंस था वो इस अच्छे कर्म से वो धीरे धीरे नलीफाई होता है। तो ये नलीफाई जब हो जाएगा तो आप व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। और अगर कोई व्याधि ऐसी है जो दृष्ट अपराधज है, दृष्ट अपराधज मतलब मैं उसका अपराध देख पाता हूँ, मैं मेरे पास पेशेंट आया और मैंने देखा कि वो गिर गया और उसको चोट लगी और चोट लगने के कारण उसको ये परेशानी उत्पन्न हुई, तो ये सब कुछ दृष्ट है। या मैंने देखा कि वो इस प्रकार के अपथ्य का सेवन करता था और अपथ्य का सेवन करने से उसको व्याधि उत्पन्न हुई, तो ये दृष्ट अपराध है। तो दृष्ट अपराध के लिए मेरे पास चिकित्सा है, मैं उसके लिए जो भी दोष प्रभावित है उस दोष प्रभाव के हिसाब से उसको जो भी शोधना आदि कर्म है और जो बाकी की चीजें हैं वो सब करूंगा तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो 3 प्रकार की चिकित्सा है, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय, ये इसी आधार पर बनी है कि जिस प्रकार के दुख है उस प्रकार की चिकित्सा है। यस सोनाली, सोनाली प्लीज. येस, आवाज येतोय माझा? हा येतोय, बोल. ओके, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छे विषय पे, अलग विषय पे आपने प्रकाश डाला है, उसके लिए धन्यवाद। एक प्रश्न विभा जी ने पूछा है कि व्याधि के साथ स्पिरिचुअलिटी को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और हर व्याधि के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ऐसा कोई विषय नहीं है जो आप व्याधि से ग्रसित हो गए तब आपने सोचा कि अब मैं कौन से मंत्र का उच्चारण कर लूं और इससे मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा ऐसा नहीं है। ये तो आपके, अब जैसे आज अभी ये भी बहुत अलग है क्योंकि आप लोग योग से जुड़े हैं। तो आजकल देखिए योग का क्या स्वरूप बन गया है कि दिस योगा फॉर डायबिटीज, दिस योगा फॉर हाइपरटेंशन, दिस योगा फॉर योर हेडेक, दिस योगा। योग का ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है। योग तो शुरू होता है चित्त वृत्ति निरोध से। यस.
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति यम नियम से शुरू होता है। कहीं योग का ये नहीं कहा गया कि आपका जो है आपके अंदर ये बढ़ गया, आप मोटे हो गए तो दुबला होने के लिए फलाना योग करिए, ऐसे तो नहीं कहा कहीं। तो ऐसे जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि अब मेरे को हाइपर टेंशन है तो मैं आपको एक प्रकार का मंत्र दे दूं, आप बोले मेरे को बैक पेन है तो मैं एक प्रकार का मंत्र दे दूं, आप मंत्र पढ़िए, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही। तो आप ये आपका नित्य क्रिया है, आप हर एक काम जो कर रहे हैं आपका उसमें ये होना चाहिए कि मैं केवल शरीर मात्र नहीं हूँ। और यह बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा, उसके अंदर भी ये भाव होता है, वो भी समझता है, वो भी जानना चाहता है मैं कौन हूँ, उसके अंदर भी ये भाव होता है कि मैं शरीर मात्र नहीं हूँ। क्योंकि शरीर मात्र है तो शरीर की आवश्यकताओं से आपकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर की आवश्यकता तो भोजन, वस्त्र, आहार इत्यादि से आपकी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए। फिर आपको प्रेम, भाव, विश्वास ये सब क्यों चाहिए? ये सब आपके आध्यात्मिकता का विषय है, आपके आत्म तत्व का विषय है। कोई प्रेम और जो विश्वास है या जो आपका आपस का संबंध है, ये कोई आपका शरीर का नहीं है, ये आपके आत्म तत्व का संबंध है। तो मैं शरीर से भिन्न हूँ, इस बात को अगर आप जानते हैं तो यहाँ से ही आध्यात्मिकता की शुरुआत हो जाती है। और आध्यात्मिकता का अगर तत्व आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आप किसी भी व्याधि से पीड़ित होते हैं, आपके अंदर ये भाव होता ही है कि ये कुछ समय के लिए ही है, परिवर्तनशील है सब कुछ, तो मैं धीरे से इससे बाहर आ ही जाऊंगा। बाकी ये बात भी है कि अलग अलग तरह के व्याधियों के लिए अलग अलग तरह के मंत्र भी हैं। जैसे मैं आयुर्वेद के लिए कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मानसिक व्याधि है तो मानसिक व्याधि के लिए ऐसे वर्णन आते हैं कि वहां पर कई जगह वो शिव गणों की पूजा बताते हैं। एक विषय आता है जहाँ दुह स्वप्न आते हैं, तो दुह स्वप्न के लिए वो कहते हैं कि सावित्री मनसा ध्यान, सावित्री मंत्र का प्रयोग करिए, यानी गायत्री मंत्र का प्रयोग करिए, दुह स्वप्न से आप दूर हो जाएंगे। तो अलग अलग विषय, कुछ औषधियों का निर्माण करना है तो उस औषधियों के निर्माण के लिए वो अलग तरह के मंत्रों का प्रयोग बताते हैं कि आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। इंक्लूडिंग आयुर्वेद में ऐसा भी आता है कि जब विवाहित जो युगल है, यानी कि जो पति और पत्नी हैं, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाते हैं तो किस प्रकार के मंत्रों का चैंट करें, ऐसे सब विषय आते हैं। तो ये सब कुछ बहुत आध्यात्मिकता का विषय है, यानी कि आप एक बहुत बड़े प्रोसेस में जा रहे हैं, आप किसी संतान नए जीव को उत्पन्न करने जा रहे हैं, तो आप क्या ऐसे ही चले जाएंगे? आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहां पर सबसे पहले आता है समान सत्वम, आपका सत्व एक जैसा होना चाहिए दोनों का, और फिर उसके लिए वहां पर आध्यात्मिकता का विषय है। तो ये हर एक विषय के लिए बहुत सारे ये आते हैं, हर एक जीवन के हर एक क्षण के लिए आपके आध्यात्मिकता के विषय हैं। अलग अलग व्याधियों के अलग अलग मंत्र भी हैं, और ऐसा सब कुछ प्रयोग में भी है, ऐसा नहीं कि ये प्रयोग में नहीं है। जैसे अलग अलग ग्रहों का जब विकृति होता है तो अलग अलग प्रकार के उनके शांति कर्म है। और कुछ सामान्य रूप से अब ये होता है कि हम सामान्य रूप से जो आपका ये कहा जाता है कि भाई आप थोड़ा आध्यात्मिकता रखिए, आप जो सामान्य रूप से जो आप कर सकते हैं वो आप करते रहिए, तो इतने से भी बहुत लाभ होता है। थैंक यू सर। अभी वी आर एंडिंग द सेशन विद वोट ऑफ थैंक्स। सो फॉर वोट ऑफ थैंक्स आई वुड रिक्वेस्ट जया मैडम टू टेक। थैंक यू नितिन सर। सबसे पहले डॉक्टर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए, और इतना लेट होने के बावजूद भी, टाइम एक्सीड होने के बावजूद भी बहुत पेशेंटली आपने सबका शंका समाधान किया। जनरली यही होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम मोक्ष का ही सोचते हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म और हमारे हेल्थ को आपने बहुत सरल तरीके से जोड़ के आपने हमको दिखाया कि शरीर से भिन्न भी कुछ और एनर्जी होती है, और हमारा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वो हम ठीक अच्छी तरह से समझते हैं। आपने जो रिचुअल जो बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठना है, ईश्वर का ध्यान करना है, या भोजन करते समय भी हमें उसमें ईश्वर ही दिखना चाहिए, इस तरह से सच में अगर हम करेंगे सो आई एम श्योर इट हमारे अंदर, हमारे भीतर वो ग्रेटिट्यूड की भावना जागृत हो जाती है।
एंड दिस विल हेल्प अस इन हमारा जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो बना है, जो कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड बना है, सो उसे काबू रखने में काफी मदद होगी. और दिस विल अल्टरनेट, आई मीन कॉन्सिक्वेंशियली इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग अवर साइकोसोमैटिक डिसीजेस, बिकॉज आजकल सभी होता है कि सभी रोगों की जड़ जो होती है वो साइकोसोमैटिक डिसीजेस होती है. सो वो हमें होगा. और दूसरी आपने बताया कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म से सही तरह से, हाँ, एक आपने बताया कि ट्रेडिशनली इवन द मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो बिलीव्ड इन द रोल ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, और जो बाद में कैसे वो पैथोलॉजी का ज्यादा डेवलपमेंट होने के वजह से वो दूर हो गया. एंड नाउ अगेन आपने हमें याद दिलाया कि 93.48% डॉक्टर्स इन द यूएस दे बिलीव that a spiritual person deals better with the stress. So वही याद आया हमारा जो जनरल फिल्म में डायलॉग होते हैं, यहाँ भी दवा नहीं दुआ काम करेगी, बट आपने बताया कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, तो हमें वो ध्यान में रखना चाहिए. और ये जो लास्ट में आपने जो बताया कि आध्यात्मिक व्यक्ति में सकारात्मकता अधिक होती है, जिससे कोई भी कष्टप्रद घटनाओं को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, ना कि ओनली वृद्धावस्था में, लेकिन इट इज आई मीन एप्लीकेबल टू एवरीवन एट एनी एज में. लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो शुरू में भी हमने जो आत्मा ये सब्जेक्ट ही इतना रुचि और उत्कंठावर्धक होता है, बट बीइंग योग साधक एंड योग स्टूडेंट्स वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें भ्रांति दर्शन में बचना चाहिए, भ्रांति दर्शन से. और ये कर्मकांड ये हम नहीं सीखे अभी इस लेक्चर से, वो हमने ध्यान में रखना. आई मीन वी शुड नॉट गेट दिस मिसअंडरस्टैंड दिस. नहीं तो ये होता है ना, जो आत्मा की भावना, ये जो हमने शुरू में जो सुना, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए. और जाते जाते भी आपने क्वेश्चन आंसर्स में भी आपने बहुत सुंदर तरीके से ये आध्यात्मिक दुख के बारे में बताया कि अपनी ही करनी जो होती है वो आध्यात्मिक दुख का कारण होता है. सो हाउ how to overcome the adhyatmic dukha. In the end, I would like to just one more thing I would like to express the regret for, because of the heavy rainfalls there were certain disturbances in the beginning. और कोई लोगों को सुनने में भी कुछ problems आ गए. So I extremely regret for that to all the participants, whomever who faced the problem. So I once again I thank you very much, Doctor, for coming here and explaining us on such a interesting subject. Thank you so much. My pleasure, madam. My pleasure. Thank you so much for giving me this opportunity. Yeah. Over to Sonali madam for the last Omkar. एक ओमकार करके सेक्शन एंड कर. Yes. As per Yoga Vidyaniketan's tradition, we will end our session. Sorry, for Omkar. So sit straight. Close your eyes. Focus on your breath. Observe your breath. Omkar, inhale fully and deeply. Om. Feel the positive vibration of Omkar on your body and mind. Slowly open your eyes. Thank you, everyone. Doctor, yes, sir. No, एक मिनट सुने. Doctor, 1 second. Doctor, जी, please. परब सर आहेत का बघ सोनाली? परब सर एक मिनिट. परब सरांना घे याच्यावरती. हो. हाँ, साइड बाय साइड घे. डॉक्टर, जी सर. प्लीज मीट अवर ट्रस्टी श्री श्रीधर परब. परब सर, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला सर. Pranam sir. It was a pleasure to hear you, and it was really, we are blessed by your presence as well as your lecture. Sir, I am grateful to you all, sir. You are running such a wonderful organization, and you are giving opportunities for the people like me to come and share the
Guruji Nimbalkar would have been very happy to hear you. And doctor, this is not the last step. This is our beginning. We'll keep on meeting and we'll keep inviting you on other functions. Thank you. Thank you so much. My pleasure. Thank you for the Thank you so much. Thank you for a little delay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Dhanyavad. We are ending the session. Yeah, we are ending. Thank you, sir. Pranam to all. Thank you. Sonali, you can Yes. end. You can end the session. Thank you.